میری آئی ڈی جنریٹر نہیں ہے، آپ اٹھا لیں اگر آپ ہیں تو، یا نئی آئی ڈی سے براڈ لگی۔ جی خان بھائی میں بھی جنریٹر نہیں ہوں یہاں پہ نا۔ اوکے اوکے، ہاں یہاں پہ پھر ہم لوگ یو پی ایس ہو گئے ہیں۔ ہاں اچھا، تو عبد القادر صاحب آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ آپ نے کہا تھا ایک مسجد وغیرہ بنا رہے ہیں آپ۔ نہیں، میں مسجد کیسے بنا سکتا، میں غریب آدمی ہوں۔ ہاں، مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں ہمارے اپنے جو مقامی علاقہ ہے۔ اور اچھا، مجھے نظر آ رہا ہے عامر حق صاحب ابھی بھی ہے ادھر۔ آئی تھنک ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو بس جاب چل رہا ہے اور میں کچھ تحقیق بھی عامر کر رہا حق ہوں۔ بھائی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کریں آپ۔ جی تو عبد القادر صاحب وہ جماعت وغیرہ والے تو کچھ تنگ شنگ نہیں کر رہے آپ کو؟ نہیں یار، کوئی تنگ نہیں کرے اس وقت۔ اور آپ کی فیملی جو ہے، پیرنٹس وغیرہ یا بردر سسٹرز، وہ کیا قادیانی اسٹل؟ ہے، میں زیادہ اپنے فیملی کے بارے میں بات نہیں کرتا پبلک میں، معذرت کے ساتھ۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے، بس جیسے ہاں، یہی بات ہے جی۔ ٹھیک ہے سر، اور آپ سنائیں؟ شکر ہے سر، بس ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مرزا ہمارا طاہر، مرشد آگے حضرت سید مبشر حسین رضا شاہ قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ، تو آپ ان کی بھی بیان سنیں۔ یہ ختم نبوت فورم کے منتظم اعلیٰ ہے اور میرا مرشد ہے۔ واہ ہاں جی، میں نے انہی کی کیا بات۔ ہاتھوں پہ توبہ کی ہے اور اسلام میں شامل ہو گیا، داخل ہو گیا۔ جب آپ اور ان کو سنتے ہوتے تھے 2012 سے، اب ادھر یہ آئی ڈی ہماری نہیں ہے، ہم نے آج یہ ٹیم خدا میں نئی آئی ڈی لانچ کی ہے، تو وہ پہلے ہم ساحل خان والی یہ جو آپ کے اوپر آئی ڈی بیٹھی ہے اس سے براڈ چلاتے ہوتے تھے، تو وہ براڈ رپورٹ ہوئی ہے ہماری، اب ہم نے دوسری آئی ڈی سے لگائی، اس پہ میری آئی ڈی جنریٹر نہیں، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نیچے گرا تو مجھے کون اٹھائے گا۔ افضل عبدل صاحب آپ شاید کچھ بات کرنا چاہتے میں ہیں؟ عبد عبدل القادر صاحب سے پوچھنا جی چاہ رہا جی تھا جی، کہ آپ کے جو تھے تجربات، افضل صاحب ذرا کوئی براڈ کا دھیان رکھیں، میں جی ذرا وضو کرتا ہوں۔ تھوڑا سا کوئی مختصر سی روشنی ڈالیں گے عبدل صاحب، جو آپ اس وقت آپ کے خیالات و نظریات، اور جس طرح سے پھر آپ نے چینج آئی، اور چینج آنے میں جو مین نظریاتی وجہ تھی وہ کیا بنی، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک تحریک آپ کے اپنے تجربے سے لوگوں تک پہنچے، کیونکہ آپ کا جو نیریٹیو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے۔ محض ہماری سائڈ سے ایک جو ایکڈیمک جو بات ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ اتنی اس کی وہ اثر نہیں اتنا رکھتی جتنا کہ آپ کی سائڈ سے جو نیریٹیو آتا ہے نا، کیونکہ آپ نے لیوڈ ان ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا سارا، وہ مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے ان سائڈ ہاؤ اٹ ورکس۔ تھینک یو سر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ایک گفتگو کا سلسلہ ہے، ایک بحث کا بھی، مباحثہ کا سلسلہ سالوں سے وہ ایک سلسلہ تھی، تو آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے سمجھایا ہے، ہم ڈبیٹس بھی کر چکے ہیں۔ تو دیکھیے آگے ہمارے حضور، تو آپ ان سے بات کریں۔ جی میں بڑی دیر سے ان کو مائک دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں گلچ آبویسلی السلام ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ جی ماشاءاللہ افضل بھائی، یہ عبد القادر بھائی ہیں، اور یہ پیدائشی قادیانی تھے، اور سوشل میڈیا کی جو میری لائف ہے پال ٹاک کے دور سے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جس قادیانی کے ساتھ ہمارے مکالمات شروع ہوئے تھے وہ یہ عبد القادر، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، پال ٹاک، آج سے کوئی راؤنڈ بورڈ کوئی 25 سال پرانی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بالکل ایسے ہی۔ جی اس وقت سے لے کے یہ پچھلے سال تک ان کے ساتھ ڈیبیٹس ہماری جاری رہیں،
मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है। और उस साबका गुफ्तगू के अंदर तलखियाँ भी हुई, क्योंकि नज़रियात और सोच और फ़िक्र अलग अलग थी, और बहुत कुछ हुआ। और वो हमारा सब कुछ साबका रिकॉर्ड हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन अल्लाह पाक मुकल्लिबुल क़ुलूब है। अल्लाह पाक जब किसी को बदलना चाहे तो वो फिर कोई ताकत रोक नहीं सकती कि वो पुराना शख्स के जो अपने अकायद और नज़रियात के ऊपर डटा हुआ था, और हत्ता कि ये अब्दुल कादर रिसालत और नबूवत के दावे तक पहुंच चुका था, और अपने आप को कहता था कि मुझे भी इल्हाम होता है, मैं मुल्हम हूँ। यानी जिस तरीके के दावाजात मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने किए, वैसे ही नज़रियात की तरफ ये बढ़ रहा था और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन अल्लाह पाक ने अपना करम किया, फ़ज़ल किया और इनके दिल को बदला और इनके क़ुलूब ज़हान को साफ़ किया अल्लाह पाक ने। तो ये महज़ अल्लाह पाक की करम नवाजी है। और बीच में ज़रिया आजज़ को बना दिया, तो ये भी अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और अल्लाह का एहसान है कि अब्दुल कादर ने फिर अल्लाह ऐलान आजज़ के हाथ के ऊपर तौबा की और ताइब हुआ अपने साहब का तमाम नज़रियात और कायद से, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ऊपर लानत डाली। और ना सिर्फ लानत डाली और ताइब हुआ, बल्कि आजज़ के हाथ के ऊपर बैअत भी की और तसव्वुफ़ के सिलसिला ख़ातमिया के अंदर ये दाखिल हुए। और अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ये अब्दुल कादर मुल्हम थे और अभी अब्दुल कादिर अल ख़ातमी बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों के भाई हैं, और यहाँ पर मैं ऐलान भी करना चाहूँगा कि साबका कोई रवैया अब इनके साथ ना रखा जाए। अभी तक तो ये मुसलमान है आपके सामने, क्योंकि हुक्म जो होता है वो ज़ाहिर के ऊपर लगता है, बातन के ऊपर नहीं लगता। और बीच में मुझे आवाज़ें कुछ सुनाई दी हैं इस एक साल के अरसे के अंदर कि अब्दुल कादर ने दिली तौर पे तौबा नहीं की, या दिली तौर पे अभी भी वो कादियानी है। तो उन लोगों को उस वक़्त भी मैंने समझाया कि हुक्म ज़ाहिर के ऊपर लगता है, बातिन के ऊपर नहीं लगता। जब तक आप कोई हरकत ऐसी देखें नहीं तो आप हुक्म नहीं लगा सकते। अगर इस तरीके से दिलों के ऊपर हुक्म लगा के आप लोग फतवे देंगे तो कोई भी सहाबी आपके फतवे से नहीं बच सकेगा, और जितने भी ताइबीन हुए कोई भी नहीं बच सकेगा। कि क्या पता कि वो ज़ाहरी तौर पे मुसलमान हो गया, बातनी तौर पे वो नहीं हुआ। तो इस तरीके से शकूक व शुबहात हमें इस्लाम और शरीयत इजाज़त नहीं देती। हुक्म ज़ाहिर के ऊपर लगता है और हुस्न ज़न रखना चाहिए और अच्छा बर्ताव करना चाहिए। पिछले दिनों अब्दुल कादर के ऊपर एक कादियानियों ने इल्ज़ाम लगाया, और बहुत बदतरीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया कि इसने नबूवत का दावा कर दिया, और साहब का कोई वो पोस्टें वगैरह ला करके उनको नथी करके एक नई वीडियो पेश की कि देखो जी अब्दुल कादर ने नबूवत का दावा कर दिया। तो उसी टाइम मैंने फिर अब्दुल कादर से रब्ता किया, मैंने कहा ये क्या है। तो इसने फौरी तौर पे तरदीद की कि ये साहब का चीज़ें हैं और जो भी ये कर रहा है ये गलत कर रहा है, मेरी तरफ गलत मंसूब कर रहा है। तो ज़ाती तौर पे मुझे बड़ी रंजश हुई और बड़ा दुख हुआ कि ये मुसलमान हमारे किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, और जिस मुसलमान ने भी ये हरकत की, और उसका नाम नहीं मैं बताना चाहता, लेकिन उनको चाहिए कि इस तरीके की हरकतें अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल हमारी शरीयत इस्लामिया इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, और आप लोगों ने गलत किया, और अभी तक उनका तौबा नामा भी नहीं आया। आपको तौबा करनी चाहिए,
آپ کو اپنے ایمان کی پھر فکر کرنی چاہیے کہ آپ ایک مسلمان کے اوپر اس قسم کے الزام لگائیں، اور الزام بھی ایسا کہ بہتان، کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بہتان کی سزا شریعت نے 80 کوڑے مقرر کی ہے، قرآن پاک کے اندر 80 کوڑے ہیں اس بہتان لگانے والے کے اوپر، قاضی وقت اس کو 80 کوڑے لگائے گا۔ تو بہرحال یہ کام غلط ہے۔ تو عبد القادر ہمارے بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، سب مسلمانوں کے بھائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، اس وقت تک مسلمان ہیں کہ جب تک آپ ان کا کوئی ظاہری طور پہ کوئی چیز ایسی دیکھ نہ لیں، کوئی کولو فیل ایسا نہ دیکھ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہیں، اب ان کے بالوں کو دیکھ کے کوئی حکم لگا دے، بھائی نہیں، وہ ان کا اپنا کردار ہے۔ فیل کے اوپر مطلب کوئی ایسا فیل کہ جو شریعت کا ٹکراؤ نہ جہاں پہ ہوتا ہو تو حکم نہیں لگا سکتے۔ ظاہری طور پہ کوئی زنا کر لے، شرابیں نوشیاں کر لے، وہ جو بھی غلط کام کرے، حرام کر یا کرے، لیکن اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے۔ کفر ایک الگ چیز ہے، گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو کم از کم سوچ سمجھ کے بولا کر، یا اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میری سلسلہ بیعت کے اندر صرف ایک ہی مرید ہے، اور وہ ہے عبد القادر۔ میرا ابھی تک کوئی اور مرید نہیں ہے، اگرچہ مجھے بیعت کی اجازت حاصل ہے، بلکہ 4 سلسلوں سے مجھے بیعت کی اجازت حاصل ہے، سلسلہ قادریہ کے اندر، چشتیہ کے اندر، سہروردیہ کے اندر، نقش بندیہ کے اندر، لیکن جو ہے میں نے صرف ابھی زندگی کے اندر ایک اپنا مرید بنایا ہے، اور وہ ہے عبد القادر جی۔ بات کر لیں عبد القادر۔ دیکھیں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، تو اس پر میں بہت ممنون آپ کے، اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اپنے مشن میں۔ یہ ختم نبوت کا مشن ہے، اور اس کا اتنا بڑا برکت ہے اس میں، اور تردید قادیانیت اور الحاد اور مرزائیت اور جتنے یہ خرافات ہے اور کفر ہے اور شرک ہے اور اس قسم کے، یہ ہمارے حضرت کر رہے ہیں۔ تو آپ سب لوگ تعاون کریں ان کے ساتھ، اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ختم نبوت کا مشن ہے، یعنی نبوت کی پاسبانی کرنا، اسلام کا پاسبان ہے یہ، تو ہم سب بھی اسلام کے پاسبان بننا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اچھا عبدال صاحب، اگر آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں کہ اوریجنلی آپ بیک گراؤنڈ کہاں سے، مطلب پاکستان سے یا انڈیا سے یا افغانستان سے، کیونکہ آپ کے ایکسنٹ سے کوئی سے واضح نہیں آ رہا، تو تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈر اگر آپ دے دیں۔ بھائی میں کینیڈا میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے ایکسنٹ لہجہ میرا شاید اتنا ٹھیک نہیں ہے اردو بات کرنے میں، اور اس وقت میرا عمر جو ہے وہ 47 سال ہے، ٹھیک 37۔ تو میرا فیملی جو ہے وہ میرے والد صاحب انڈیا سے ہے، اور میرا والدہ پاکستان ہے، انہوں نے ادھر ہی کینیڈا میں شادیاں کی ہے، پھر میں کینیڈا میں پیدا ہوا۔ یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے مختصر۔ جی جی ٹھیک ہے، گڈ صحیح ہے۔ تو اچھا، تو میرا پہلا جو کوشچن تھا اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیے، میرا خیال ہے حضرت مفتی صاحب نے روشنی ڈالا ہے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ، تو اس میں میں اور کیا اضافہ کر سکتا ہوں، یہی قصہ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو خبردار کرنا چاہیں قادیانی نظریات کے اندر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے لیے کون سا راستہ یا نصیحت کا، ایڈوائس کا اختیار کرنے کو کہیں گے کہ بھائی یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہیں وہ بالکل آبویس ہیں؟ میرا خیال ہے یو گیٹ وٹ مائی پوائنٹ از کہ بھائی جیسے کہ آپ میرا خیال ہے موجود ہی تھے، جیسے عامر حق صاحب اور بلکہ جنید صاحب آئے تھے، انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا محمدی بیگم کے بارے میں
مرزا صاحب کا کلیم اور ان کا جو تھا روحانی خزائن جلد 3 اور صفحہ نمبر میرا 305 سے شروع ہوتا ہے. ازالہ اوہام میرا خیال ہے بک کا نام ہے کتاب اس. تو اس میں جو ان کا وہ الہام ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی سچائی کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ سچ نہ ہو تو ان کے دعوے میں آبویسلی اٹس بوگس. تو ان کے دعوے کی ویلیڈیٹی کو انہوں نے اس سے بیسیکلی ہی ہیز کنڈیشنڈ اوپان ہز کلیم. تو جو کہ بیسیکلی وہ کلیم ان کا بالکل ثابت نہیں ہوا، جو کہ اس کے بارے میں ناقابل تردید جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو کیا آپ اس کو دلیل بنائیں گے بڑی اسٹرانگ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی یہ ایک فالس مذہب ہے جس کے اندر لوگ پھنسے ہوئے، اور موسٹلی جو انڈین پاکستانی بنگالی بنگلہ دیشی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہمارے رشتے کا، میرے بھی عزیز و قارب کافی ہیں اس میں پھنسے ہوئے، وہ وہی ہیں جو ظاہر بزرگوں نے اس مذہب کو اڈاپٹ کیا تھا اور وہ نسل بائی نسل اس میں ہیں، کیونکہ بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو اسے پڑھ کے گئے. تو اس کے اوپر اگر کوئی روشنی ڈالیں. دیکھیں افضل وریچ بھائی، بہت سارے چیزیں ہیں، آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے. مرزا قادیانی نے کہا کہ میرا اگر ایک بھی پیشن گوئی جھوٹ نکلتا تو میرا منہ کالا کرو، مجھے گدھے پر بٹھاؤ اور مجھے جو ذلیل کرو اور سمجھو کہ میں جھوٹا ہوں. اس کا تو ایک نہیں، اس کو تو سارے پیشن گوئی وہ جھوٹ نکلے. آپ بھی مطلب محمدی بیگم والا پیشن گوئیں کو دیکھو، عبداللہ آتم والا کو دیکھو، اس کا یہ کہنا کہ میں 80 سال سے اوپر بھی زندگی جو ہے وہ گزاروں گا. جتنے بھی اس کے پیشن گوئی ہیں سارے کے سارے وہ فراڈ تھے، جھوٹ تھے. تو قادیانیوں کو ہم پھر یہ نصیحت کریں گے، میں یہ نصیحت کروں گا کہ اگر کوئی قادیانی کہتا ہے کہ بھائی میں تلاش حق میں ہوں، میں مخلص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حق کو تلاش کر رہا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ حق کیا ہے، تو میں اس کو تو یہ نصیحت کروں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں جو اس فیلڈ میں، جو اس میدان میں ایکٹیو ہے، جیسے کہ حضرت مفتی صاحب ہے اور بھی بہت ہمارے اہل سنت کے علماء ہے، آپ ان کو سنیں، آپ ان کے ساتھ بات بھی کریں، آپ ان کے ساتھ مکالمہ کریں جیسے کہ میں نے کیا. آپ ان سے سوال کریں، وہ مجھے یقین ہے وہ آپ کو مطمئن کریں گے، اگر بشرط یہ کہ آپ مخلص ہے، آپ کے اندر ضد نہیں ہے، تو یقیناً وہ آپ کو مطمئن کریں گے، ہر سوال کا جواب دیں گے. جو بھی قادیانی کا سوال ہے، جو بھی قادیانی کا اشکال ہے، یہ ہمارے علماء ہر ایک کا جواب دیں گے، ہر ایک کا، یقین ہے مجھے. اور اگر آپ کے اندر ضد نہیں ہے، یقین کرے آپ توبہ کریں گے اس کفر مذہب سے، اور آپ مرزا قادیانی پر لعنت بھی ڈال دیں گے اور آپ اسلام میں داخل ہوں گے. یہ میرا نصیحت ہے. آپ کرے بات. جی ویری نائس، تھینک یو. جی مفتی صاحب افضل صاحب کی باتوں میں تو ماشاءاللہ بڑی اتھینٹسٹی ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں کسی قسم کا بھی. یعنی جیسے پہلی دفعہ بندہ سنے تو انگلش میں یہاں پہ کہتے ہیں امریکہ کینیڈا میں وائبز جو آتی ہیں وہ بالکل 100% مطلب ایک جینون جو ہوتی ہے ایک نیریٹو بات اس کی. یہ افضل بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر ان کو کوئی 1 سال پہلے سے لے کر سمجھ لیں کہ 24 سال، یعنی پیچھے 24 سال کے جو عقائد اور نظریات یا جو ان کے ساتھ میرے مکالمات ہوئے وہ آپ دیکھ لینا، آپ کہیں کہ یہ کیا چیز کیا ہے. یعنی آپ ابھی کی کیفیت اور اس 25-24 سال کی کیفیت کو آپ کہیں کہ یہ یقینی، واللہ آپ یقین نہ کریں کہ بھائی یہ واقعی وہی ہے. یعنی ابھی سفید و سیاہ کا فرق پڑ گیا ہے، اور یہ محض اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے. واللہ اتنا سخت بندہ اور اتنا مطلب آگے تک چلا گیا جو نبوت کے دعوے تک پہنچ چکا تھا، تو اس کو اللہ نے کرم کیا. یار یہ اللہ پاک کے کرم نہیں تو اور کیا ہے. افضل صاحب سن رہے ہیں؟ بالکل مفتی صاحب، بالکل واضح. تو بہرحال یہ اللہ کے فضل ہے، کرم ہے. اللہ جو چاہتا ہے بھائی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر لے. ہاں جی، تو یہ اللہ کے فضل ہے. بڑا دیکھیں عبد القادر کو دیکھ کے یقین جانے ہمیں ذاتی طور پہ دلی سکون، چین اور وہ ایک طمانینت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کے حضور ہم بھی شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا فضل ہے، اللہ تیرا فضل ہے، اللہ تیرا کرم ہے. تو اتنا
कितना करम करता है अपने बंदों के ऊपर और कितना पसंद करता है तू अपने बंदों को। हाँ जी, अब वो ये भी तो देखे ना कि वो इस अपना जो इसकी अपनी कैफियत है अब्दुल कादर की कि अल्लाह के हजूर इसका क्या मकाम है, अल्लाह ने इसके ऊपर इतना फजल किया, इतना उसको पसंद किया। ये भी तो देखिए आप, ये महज अल्लाह के फजल और करम होते हैं। और वैसे तो देखिए कादियानी अमूमी तौर पे मुसलमान होते ही रहते हैं, लेकिन उन कादियानियों का मुसलमान होना एक अलग चीज़ है, और इस जैसे बंदे का मुसलमान होना कि जो आखिरी हदों तक पहुंच चुका है, नबूवत के दावे तक पहुंच चुका है और इल्हामियत का दावेदार हो चुका है, और उसका वापस लौटना ये कोई अलग अहमियत रखता है। तो ये महज अल्लाह का फजल व करम है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इनके मज़ीद इश्क के अंदर इजाफा फरमाए। अल्लाह इनको अपना आशिक बनाए, अपने महबूब का आशिक बनाए। इश्क बड़ी दौलत है। अल्लाह और रसूल का जो इश्क मिल गया ना जिसको, वो बस बल्ले ही बल्ले है, खैर ही खैर है। तो मेरी तो दुआएं हैं अल्लाह इनको आशिक बनाए। और साबका अपनी गलतियों का तदारुक करने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि अब ये रद्दे कादियानियत के ऊपर अपनी ज़िंदगी को वक्फ करें, और जितना काम पहले इन्होंने कादियानियत की तबलीग के अंदर गुजारा था, अब उसका तदारुक करने के लिए अपनी रहती ज़िंदगी तक और अपनी वेबसाइट जो इनकी चल रही है उसको, उसका साबका सारा डाटा ये डिलीट कर दें, या मतलब डिलीट ना भी करें तो एक नोट लगा दें कि भाई मेरा साबका रिकॉर्ड भी मेरे आपके सामने है, लेकिन उससे मैं सब कुछ तायब होता हूँ, और आइंदा से मैं अब रद्दे कादियानियत के ऊपर काम करूँगा, और मैं इस डाटे को डिलीट नहीं कर रहा ताकि मेरा साबका रिकॉर्ड भी दुनिया के सामने रहे कि मैं ये था लेकिन अब ये हूँ। तो इस तरीके का ये होना चाहिए। तो मेरी ये एक तजवीज़ है इनके साथ। ठीक हो गया अब्दुल कादिर भाई, मैं आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ, मुझे भी काम है थोड़ा सा, तो मैंने आपको देखा तो आपको फॉलो करते हुए ही आ गया हूँ। तो अब्दुल कादिर आप मुझे भी फॉलो कर लें, और जहाँ पर आप मुझे देखें तो आप कोशिश किया करें, अगर वक्त हो तो शामिल होने की कोशिश किया करें और कॉल डाला करें। ज़रूर ज़रूर। असल में मैं नया हूँ ना, टिकटॉक पर अभी 2 दिन हो गए, तो मैं सीख रहा हूँ कि ये कोई थोड़ा मुख्तलिफ सिस्टम है। हाँ, कोई नहीं, आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे ही बस जो भी मुश्किल हो मुझे आपने पूछना है, ठीक है? तो हर किस्म की मुश्किल हल हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह कि आइंदा से आपने अपनी बराडें लगानी है, इंशाल्लाह आपने अपनी बराडें लगानी है, और आपकी बराड पे मैं स्पेशल आया करूँगा इंशाल्लाह। जी, तो ये काम हमने आगे बढ़ाना है अल्लाह के हुक्म से। ओके। और ये है कि वो साहब का जो गलतियां हुई हैं, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफार है, अल्लाह माफ़ कर देता है, और उम्मीद तो ये है अल्लाह ने सब कुछ माफ़ कर दिया होगा। हाँ जी, क्योंकि वो गफार है और सत्तार है। आमीन, बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह तआला आइंदा जो है ना, रद्दे कादियानियत के ऊपर और कादियानियत का जो असल चेहरा है वो दिखाने के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना अब्दुल कादिर भाई? जी जी ज़रूर, इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहिबान, मुझे भी इजाज़त दीजिए। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। हेलो, सो गए सबके? अस्सलाम वालेकुम। जाग रहे हैं। हाँ सब मौजूद यार, मेरी आईडी जनरेट। जी बिल्कुल, मैं ना बस थोड़ी देर में आता हूँ नमाज के बाद इंशाअल्लाह। अच्छा, बशीर भाई भी नीचे आए हुए हैं, डॉक्टर डू भी आए। मुझे जनरेटर बनाते जाना। सैल भाई,
لو یار بھائی آپ جنریٹر ہیں، کوئی ایشو آیا ہوا ہے جو آئی ڈی نہیں وہ چل نہیں رہی ہے، آپ کی ایشو ہے کوئی تو جنریٹر آپ ہیں ابھی ہوا ہوں. وہ ریسیٹ کرنا پڑتا ہے، ادروائز ہیں آپ. چلے آ جاؤ بھائی. اوکے اوکے. بشیر بھائی اور وہ لوگ بیٹھے، ڈاکٹر ڈو لوگ. چل اچھا وہ عبدل صاحب جو تھے وہ کافی چلے گئے ہیں، ویسے کافی انٹرسٹنگ. وہ السلام انہیں علیکم. ہمیں یہاں پہ ریگولر آنے کے لیے لاک کرنا چاہیے. جی 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 انشاءاللہ. عبد القادر صاحب جو تھے، ان کا نبوت کا دعویٰ تھا، ان کو میں نے سنا ہوا ہے کچھ سال پہلے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ختم نبوت اور رد قادیانیت پہ جو آتا ہے انہوں نے عبد القادر صاحب کو سنا ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ اس کے ساتھ بندہ ایک اور بندہ. جی علم بھی اس بندے کے پاس ظاہر ہے وہ دونوں طرف کا ہے، تو ایک پریپیئرڈ ایک قسم کی پروڈکٹ ہے نا، وہ ریڈی ٹو لانچ. کیا وہ اس فورم کے لیے بڑا سوٹیبل ہے آپ کے. اپنا افضل صاحب ہمارا جو الحمدللہ ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے نا یہ والا، اس میں ہم بالکل کسی قسم کی چیز کا مداخلت افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمارے ایک اپنا ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرنے کا سٹائل ہے. آپ تھوڑا شاید ابھی ذرا سمجھیں. بالکل ایون بالکل ہمارے بالکل. اپنے بھائی بھی ہمارے طریقے سے مطلب بہت سے ہمارے ایک بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ انداز ہے. ہم بہت سا کام بیک اینڈ پہ کرتے ہیں، یہاں بہت تھوڑا کام کرتے ہیں. اور اس میں ہم کچھ لوگوں جو لوگ ہمارے ٹارگٹ ہوتے ہیں ہم بڑی مشکل سے ان کو اپروچ کرتے ہیں اور یہاں لے کے آتے ہیں. اکثر اوقات کچھ جذباتی لوگ وہ چیز ہمارا شکار یا ہماری جو محنت ہوتی ہے وہ 2 منٹ میں ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم بالکل یعنی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ جو میتھڈ ہے نا آپ کا، وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہی اس کو فلو کرنا چاہیے، اور درمیان میں کوئی ٹانگ اڑائی جو ہے نا وہ واقعی مجھے اب سمجھ آئیے. دیکھیں نا 1-2 کیسز میں نے دیکھے ہیں جب سے یہ پچھلے 48 آورس میں، تو مجھے کافی اس کی اورینٹیشن ہوئی ہے کہ دا وے یور ورکنگ از، اس میں واقعتاً اس کریٹیکل مومنٹ پہ کوئی بھی بندہ جو آئے گا چاہے جتنی بھی اس کی اچھی انٹینشن ہوگی وہ سارا ڈیریل ہو سکتا ہے. اور وہ چاہے علم میں بھی زیادہ ہو. اب ٹھیک ہے جیسے ابھی مثال کے طور پہ عامر حق بھائی ہے نا، وہ آتے ہیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس دوران ہم کسی چیز کو ٹارگٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہمارا کوئی نشان بھی نہیں ہوتا. اس طرح کوئی علماء آتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن ہم ٹوٹلی اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے مطلب بعض ٹائم کوئی بھائی غصہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ چیز ہمیں برباد لے دے جاتی ہے. ہماری مہینے کی محنت 15 دنوں کی محنت ضائع. اور اب ہم نے یہ اوپنلی جو پچھلے 2 کیسز کیے ہیں نا، یہ بھی اس لیے کیے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو سمجھا سکیں کہ اللہ کے بندو تھوڑا عقل کرو، ہمیں غرق کر رہے ہو. ایگزیکٹلی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ورنہ ہم یہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. جب آپ آئے نا ان دنوں ہماری براڈ بہت زیادہ بیزی ہوتی تھی، اگر آپ کو یاد ہو افضل صاحب. جی جی جی. تو ہماری براڈ پہ یہ ایشو اس وقت بھی چل رہا تھا کہ یار ہم اپنا پرانے طریقے سے کام کرتے ہیں جو کہ افیکٹو ہے. براڈ ہیوی چلا کے 70-80 پہ براڈ چلا کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سرکس بازی ہے، اور وہ سرکس بازی ہی ہے ایکچولی. لوگ اکٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے جناب، وہ پھٹے پن رہے ہیں، تو وہ پھٹے چکن پھٹے پنن نال جڑا نا وہ دیٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرینس. یا جو ٹارگیٹڈ کیمپینز ہیں لانگ ٹرم میں افیکٹو ہوئی ہیں. ڈاکٹر ڈو میں رات کو آپ کو مائک دیتا تھا، آپ ریموو ہو جاتے تھے، وہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. جب آئی کان اپیئر ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا آتا تھا انوائٹ، میں انوائٹ کو پریس کرتا ہوں آئی کان کو تو بندہ ریموو ہو گیا، مطلب بندہ بالکل نظر ہی نہیں. بعد میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی،
लिंक भेजने की ट्राई, वो मुझे पता नहीं था कि सर्च बॉक्स में टाइप करें तो वो भी तरीका है आपको ढूंढने का फास्टर। नहीं, मैं आपकी ब्रॉड पे था, नीचे था, सुन रहा था। मुझे बीच में कॉल आई हुई थी, इसलिए वो शायद ड्रॉप होया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा पता नहीं अब क्या वो तो नहीं, वो कॉल अगर आ जाए ना टिकटॉक के, अगर आप ऊपर हो तो कॉल आ जाए, Right. ऑटोमेटिकली फिर टिकटॉक आपको ड्रॉप कर देता। तो मे भी सोई ग्लिच आया हो शायद इस वजह से। सही सही सही। आप लोग मुझे 10 मिनट दें, आप लोग बात करें प्लीज। हाँ जी कादियानी का ये देखे मुफ्ती साहब आ गए। आपके आपको अशकिस्त हुई है। अब तुम सुनो ना, मुफ्ती साहब आ गए। चले मुफ्ती साहब साहब हो गए, सुन लो। ये ऑडियो सुना रहे थे जी, डॉक्टर इसरार ने मुफ्ती को तरीके किया जी मिर्जा कादियानी। जी जी उस्ताद मोहतरम, हमारी तो सुनने का कोई कादियानी नहीं है। नहीं, मैं मोची हूँ। अच्छा, मोची साहब, नाम क्या है मोची का? नहीं, ये नहीं मोची साहब, जी बोले। मिर्जा गुलाम कादियानी की ज़नाकारी का लगता है। वो मुझे पता हो आपके घरों में चलता है। ज़नाकारी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि मिर्जा दानी। आप हट्टों पे आ गए हैं। नहीं, मुझे पता नहीं है किस मौजू पे आप मोची साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं मोची साहब, मुझे बता दें कि मिर्जा कादियानी की शराब नोशी पे बात हो रही है कि ज़नाकारी पे बात हो रही है? तो आप रोज करते हैं, मुझे पता आपका है, छोड़े इस बात को, वो तो मुझे पता है आपका। किताबों से। और ठहर जाओ ना, मेरी कोई किताब नहीं है। अच्छा, मैं तो आप लोगों में रहता था। मैं तो आपसे इधर आया हूँ। आप बताएं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, आप में था, आप बताएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ये कलमा पढ़ रहा पहले। वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि मिर्जा कादियानी की ज़नाकारी और शराब नोशी का क्या करना है? आपके बुजुर्ग बता गए हैं। डॉक्टर साहब ने आपके भी आप जुटा किया है, डॉक्टर शाह मसूद ने आपको जुटा किया है, बाकी जो बुजुर्ग साहब सब जुटा किया है। आपकी तो आप हैं कौन, ये बताएं मुझे। यार कोई दोस्त भी इनका माइक म्यूट ना करे भाई। हाँ जी, आओ जी, आओ आ जाओ। कोई दोस्त भी माइक म्यूट ना करे, इनको बात करने दें। और हाँ जी, बताएं ना, वो जो आप इल्जाम लगा रहे थे मिर्जा साहब के ऊपर, आप झूठे क्यों साबित हो रहे हैं, ये बताएं। मैं जो इल्जाम मैं नहीं, मैं हाँ जी, सुन तो लेना आप। देखिए, मैंने लड़कों को रोका है कि इनका माइक ओपन रखें, माइक ओपन। आ जाए। तो अब आप भी तो कोई ख्याल करें, और जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में बोले नहीं। जब आप बात करेंगे, यकीन जाने मैं भी बीच में नहीं बोलूंगा। ठीक हाँ है जी, बोले जी, मौलवी साहब बोले। अभी देखिए, मैं ना एक हवाला देता हूँ। ये आप लोगों का अखबार है, अल फजल अखबार है, 31 अगस्त 1900। फिर मेरा कौन सा अखबार है? यार एक मिनट जरा, माइक तो म्यूट रखिए ना, आप खुद म्यूट बात सही करें ना भाई। एक मिनट, ठीक, माइक म्यूट खुद करें, हाँ जी, खुद कर ले, कोई और ना करे। मैं नहीं पहले बात हो ना, पहले बात चलते हैं आगे। मुफ्ती साहब चलते हैं आगे, ठहर दे। माइक आप खुद म्यूट करें, मुझे बात करने। मैं नहीं म्यूट कर रहा, आप बात नहीं सुनते। अब आपने बात करनी, आपके बुजुर्ग यहाँ बैठ के सारी बातें करते हैं, मिर्जा साहब को इल्जाम लगा रहे थे, मैं झूठा साबित कर दिया उनको, उसका क्या कहेंगे? अच्छा, अब मैं बोल लूं? नहीं, उसका पहले कर, आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ पहले आप यहाँ पे इजाजत देते हैं, लोगों को गुमराह कर दे, उसके ऊपर बताएं कि उन लोगों को क्या कहेंगे। अल्फाज भी खोल लेंगे, मेरे पास सब कुछ है, फिक्र ना करें, घबराएं नहीं। हाँ जी, सब कुछ है मेरे पास। अब मुझे ये बताएं, इन लोगों ने कहा कि मिर्जा साहब ने मुनाज़रे हारे, और आपके बुजुर्ग कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने शिकस्त दी हिंदुओं को भी और ईसाइयों को भी, और क्यों शिकस्त दी, वो क्या मुनाज़रा था, ये बताएं मुझे। क्या था, क्या इल्जाम थे उनके मुसलमानों के ऊपर जब शिकस्त दी, वो बताएं मुझे। हाँ, ये बात है, इस पे बात करनी है। अच्छा चले, माइक अब म्यूट कर लें तो मैं बोलता हूँ। मैं नहीं, माइक खुला रहना ताकि आप, मुझे पता है आप दूसरी तरफ आ गए। ऐसे नहीं, माइक म्यूट ऐसे नहीं ना,
आप भाग जाएंगे, मैंने जो बात करी उस पर मैंने तो उस अच्छा बात पे बात अब कर दी। लड़कों को कहूं कि वो जबरदस्ती आपका माइक म्यूट करें? नहीं, लड़के कर दे, कोई मसला नहीं। हाँ वो चले तो आपने भैया करना अब है। जबरदस्ती इनका माइक म्यूट करें। अच्छा तो पहले एक चीज को क्लियर कर लेना, फिर अगली बात के मिर्जा जी ने कितने मुनाजरे किए हैं वो बाद में। ये अल फजल पहले वही बात- अखबार है, 31 पहले वही- अगस्त 1938 का शुमारा है और सफा नंबर 6 है, और यहाँ पे लिखा है कि मिर्जा कादियानी वली अल्लाह था आपने- और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर आपने- लिया करते हैं। अगर मिर्जा गुलाम कादियानी ने आपको कभी कभार सुनिए, जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? फिर लिखा है कि हमें मिर्जे कादियानी के ऊपर एतराज नहीं, क्योंकि वो अरे कभी बात तो नबी पाक को कभी कभी जना करता था। हमें एतराज खलीफा जानी आप नबी 2 पाक पे भी नंबर जवाब का दिया। यानी खलीफे के ऊपर है, क्योंकि ये खलीफा जानी जो है हर वक्त जना चलिए, करता मौलवी रहता भाग है। रहे हैं। मौलवी, इस एतराज से पता लगता है पे कि आ गए। ये शख्स मौलवी पैगामी असल बात तबा पे है, इसलिए क्योंकि कि ये हमारा मौलवी- हजरत मसीह मुतरलह शलवार के मुतल्लक मौलवी ये है। एतकाद है कि आप नबीउल्लाह थे, मगर पैगामी इस बात को नहीं मानते और वो आपको सिर्फ वली अल्लाह समझते हैं। तो ये तो एक बात जो मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी की थी, हवाला आपने पूरा सुना ही नहीं है और बीच में बोलते रहे आप जैसे लोग ये कोई तरीका नहीं है। वैसे ये तरीका नहीं है। आपकी बात के अंदर हम बोले तो नहीं थे, चुप करके आपकी बात सुनी, आपकी बात चुप करके सुनी थी कि नहीं? ठीक है, लेकिन हमने जब बात करनी शुरू किया आप हमने जब बात करी कुरान लाए भी बोलते रहे हैं। ये देख ले बार बार कुरान आपका लेके आए, चैलेंज मेरा। हाँ जी लाए अच्छा, चैलेंज चले लिए। चले एक चैलेंज मिनट मेरा। जरा सुन ले, चले कुरान पे बात करें, सुन ले बस, थोड़ा सा माइक म्यूट रखे लाए लाए भाई, माइक म्यूट रखे, सुन ले, कुरान पे बात नहीं करें बूटा काम मैंने यार, इनका माइक म्यूट करें। चले ध्यान रखना देखें ना। देखें कुरान से आप साबित कर दें कि जो मसीह मऊद होगा हाँ, वो बताएं। जानी कुरान से होगा। कुरान से आपने साबित करना है कि जो मसीह मऊद होगा वो कभी कभी जना मिर्जा साहब को करेगा। झूठा साबित करें। ठीक, वो ही ना कुरान से आपने साबित करना है ना कि साबित मसीह कुरान से मऊद आप- जो है ना उसको कुरान ने इजाजत कुरान से दी साबित हो करूंगा आप झूठे हैं। कि वो कभी कभी जना करेगा। ठीक है, चलें शुरू हो जाए। चले अब चले बताएं, आपके बुजुर्गों ने जो इल्जाम लगाए हैं मिर्जा साहब के ऊपर, वो सब क्या जो आप इल्जाम यहाँ पे लगा रहे थे, आपके बुजुर्गों ने बताया तो वो सच्चे हैं, आप झूठे साबित हो गए हैं? मैं बताएं। बीच में बोलना शुरू कर दूं जैसे आप नहीं, बोल रहे थे? बताएं कि क्या कहेंगे उसके ऊपर। मुझे आपने बता कहा कि दे मिर्जा कि साहब भाई को बीच किस में ही बोलना शुरू कर दूं तो मैं तो इस काम में बड़ा शेर हूँ। आप मुझे मुझे इजाजत पता है दें। आप शेर है, शेर नहीं आप शेर, इधर मुझे देखिए, पता मैं है फिर शेर सारे है। लड़कों को कहता हूँ माइक ओपन कर ले, आपकी एक नहीं सुनाई दे। करें, समझ करें आई ना। ये तरीका ही नहीं है गुफ्तगू का, ये कादियानियों का तरीका है, हमारा ये तरीका नहीं है। हम कहते हैं कि जब आप बात करें तो हम सुने, जब हम बात करें तो आप सुने। हम तो ये कहते हैं। मुफ्ती मुबशर, मैं बरेलवी सी पहले हूं, दसो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, तो बरेलवी सन जाहिल तो मुशरक सन। अच्छा तो ये हाँ, हवाला हाँ, मेरी जो बात है, सुनो, ये सुनो, हवाला सुनो। स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका क्या इस हवाले को रख- नहीं, आप कह रहे हैं इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम उसको कहते हैं जो बात बगैर दलील की होती है, उसको कहते हैं असल बात इल्जाम। किताबें मेरे पास पड़ी मैं हैं, आपको मौलवी। दलील दे रहा हूं तो अब तो असल किताबें पड़ी हैं मेरे पास है, अपनी किताबें अब ये इल्जाम तो ना रहा। आप कह रहे हैं इल्जाम लगा रहे बात क्यों रहे हैं? हैं। नहीं, मैं कब भाग रहा हूँ? कब भाग रहे? जी सब लोग देख ले, इन लोगों को मैंने नहीं नहीं, ये आपने क्या शुरली छोड़िया भाग क्यों रहे हो? नहीं मतलब मैं कब भाग रहा हूँ? आपने मुझे भागते देखा? मैंने इनके मैं तो एक जगह पे टिका हुआ हूँ, मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी इन के लोगों ऊपर। को मैं तो ज़नाकारी के ऐसे टिका इल्जाम हुआ लगा हूँ, रहे मैं हैं तो नहीं भाग रहा। जैसे हाँ जी, हमारे तो ये नबी कभी पाक कभी सल्लल्लाहु जना अलैहि का वसल्लम आपने कुरान से साबित करना है कि मसीह मौद को इजाजत मिली हो कि मसीह मौद लगा रहे हैं। कभी ये कभी है, जना ये कर देखो। सकता है। कुरान से आपने साबित करना है कि मसीह मौद काट कभी करके लगा कभी। रहे हैं। हाल इनका ये है, ना इनके पास कोई दलील है, ना इनके पास कुछ है। बोल लेने दे, बोल लेने दे। हाँ जी, दलील तो हाँ तेरे जी, सामने दलील आओ लगी ना। हुई है। आपने कहा कि तेरे मिर्जा सामने साहब लगी हुई ने है। मुनाजरे नहीं जीते, मैंने साबित कर दिया कि मिर्जा साहब ने सारे के सारे मुनाजरे जीते आपके बुजुर्गों के। वो जना ये ते भी गल साबित कर, कर दिया। जना सुन लो, ते गल कर, जना ते ये भी गल कर, साबित कर जना ते गल कर, मिर्जे दी जनागानी ते गल कर। साबित थे ही नहीं को इनको को जवाब दे सके। साबित कर चुका हूँ।
हाँ जी बोलें। अच्छा बात सुने, मोची साहब, नहीं मोची साहब, जी। बात जी। एक मिनट सुने, सुन तो ले। मैंने कैमरा इसलिए ओपन किया है, अगर तो जनाब मेरे भाई आपने अगर तो करनी है डिबेट, हाँ जी। तो उसका एक तरीका कार है कि पहले आप बोल लें, मैं चुप करके सुनूं। फिर ऐसा ही मेरे साथ भी आप करेंगे कि जब मैं बात करूं तो फिर आप चुप रहेंगे। चलो ठीक है, बात ठीक है, बात क्या होगी। सुन तो लेना, सुन तो। ये देखे स्टॉप वॉच मेरे पास रखी है, अभी 0-0 पे। 2 मिनट आप बोल लें, 2 मिनट मुझे बोलने दें, ये होती है गुफ्तगू। बात वो होगी जो पहले हो रही थी। भाई ठीक हो गया, आपने कहा हाँ, ओ भाई तो जवाब ठीक है दें। यार, एक बार सुन तो ले, साथ तो ले लें यार, क्या हो। हाँ जी, हाँ, माइक बोले। माइक म्यूट करें मैं माइक खुद ही माइक। नहीं माइक चल रहा है तो बात करें, क्योंकि आप बात करते म्यूट कर ले प्लीज। तो मेरी बात सुना, बात सुन लें। हाँ। आपके लोगों ने कहा कि मिर्जा साहब ने माइक म्यूट करें, मैं सिर्फ आपको गुफ्तगू का अंदाज सिर्फ समझाने लगा। सिर्फ आप नहीं, अंदाज मुझे आता है गुफ्तगू का, मैं तो बदतमीजी बोली थी। एक मिनट वो आपने जानी दूनी वाली बदतमीजी यार की, मुझे मैंने नहीं एक की। मिनट हाँ दे जी। दें भाई, 1 मिनट दे दो। देखें जी, जाननाई करते थे ये लफाज। और चल यार, वो शराब पीते थे, जना नहीं करते थे, वो बात की बात है, बात तो सुन लो यार, कमाल हो गई है। मैं कहता हूं कि आप एक मौजू तय करें, उस मौजू पे रह के बात करते हैं, ठीक है। म्यार आपने बनाना है, जो म्यार आप कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे। मौजू यही था, सुन ले, मौजू ये था। जी। अच्छा एक मिनट मैं लिख लूं जरा, 1 मिनट मुझे कॉपी तो पकड़ने दो। आप भाग दौड़ आपने कर नाम लगाया कि मिर्जा साहब को। साल ले लो यार, साल ले लेगा। और मैं मेरा साथ नहीं काम करता हूँ, मैं आपका नमक राम नहीं हूँ। ਉਹ ਚੁੱਪ अच्छा, ਕਰ मौजू ਜਾ, क्या ਤੇਰੇ है? ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਾਈਏ ਹੁਣ ਖੋਤੇ हाँ, ये ਦਾ लाश- ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। और यार आगे कोई ना ना बोलो बेटा, ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ बोलियो अगर भाई, ठीक है भाई, भाई कहां खामोश हो जाओ। यार 1 मिनट यार, सारे खामोश हो जाओ। बोल अब कोई नहीं, कादियानी साहब ने गुस्सा चढ़न दियो, कोई मत। जी मौलवी साहब, जी। मुफ्ती साहब जी। सुन लो। जी। अच्छा मौजू क्या है, पहले तो बता दे मौजू क्या है, किस मौजू पे बात करनी कर लें। माइक ओपन करें, बताएं मौजू, बताएं, मैं लिख लेता हूँ। हाँ, मिर्जा साहब के ऊपर नाम लगा रहे थे कि मिर्जा साहब ने मौजू बताएं, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं। यही मौजू है क्या मौजू है? मिर्जा कि साहब मिर्जा के साहब ने बाद कोई डाले जितने मिर्जा साहब हारे हैं, शिकस्त हुई है, झूठे थे, ये वो। अच्छा, मतलब बात सुन, मौजू ये है कि मिर्जा साहब ने जो मुनाजरा किए वो हारे या जीते, ये हाँ। मौजू है। हाँ हाँ बस एक मैं लिख लूं जरा। हाँ जी। मिर्जा कादियानी हाँ, ने जो मुनाजरा किया, कादियानी नहीं, कादियानी साहब लिखे आगे। साहब लिख दिया, ये ले। हाँ। मिर्जा कादियानी साहब, क्योंकि मिर्जा हाँ जी। कादियानी साहब ने जो मुनाजरे, कितने मुनाजरे तकरीबन किए, जितने भी किए हैं, मतलब कितने, कोई 100 200 जितने भी किए हैं, भाई 200 400 जितने भी 500 किए, जिन लोगों से किए उनसे पूछे जाके, जितने भी किए तकरीबन हैं। कितने पर मैंने जितने भी मौजू- किए हैं, सुन लो ना। भाई यार मौजू तकरीबन के अंदर, जितने भी किए हैं ना, सुन लो ना पहले। और मैंने मौजू के अंदर लिखना तो है कि नहीं लिखना? नहीं, जितने भी किए हैं ना, वो कर लेते हैं बस पे। मिसाल है आप जितने भी आपके किए हैं, नजदीक- देखो, यार, एक ठहर भाई, दे, मोची साहब, नबी कितने मोची आए हैं? साहब, मोची साहब एक- मोची मैं साहब बताता एक- हूँ। मोची और साहब ठहर एक जा, मिनट, और ठहर जा ना, मोची तो साहब- समझाने का, तो आदि का हाँ, जवाब मोची साहब देने रुके तो सही, मोची ठहर साहब, लो ना। भाई मोची साहब रुके 1 मिनट, बात सुने। दुनिया कि के ऊपर आप बता नबी दें- कितने आए हैं? आप बता दे कि कम से कम मिर्जे कादियानी साहब ने कितने मुनाजरे किए? जितने भी किए हैं, जितने भी तकरीबन किए हैं, एक किया अनलिमिटेड, था, एक ही है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, 1 लाख हर 2 लाख हर वक्त ये खुदा के कामों में मसरूफ थे। नहीं। मुनाजरे कितने? सुन लो ना, मुनाजरे सुन तो लो, मुनाजरे बात सुना। कितने? मुनाजरा एक चलो किया, ठीक है, 10 किया, ठीक है, 20 चल किया, यार तूने तो सुन खप तो लो डालनी ना। है यार, इधर माइक म्यूट करो यार, मैं अभी मुनाजरे मौजूद है। जितने भी किए, ये बात नहीं माइक मैटर, इसका बात म्यूट ये है कि जितने भी माइक किए, म्यूट करें इसके किए। इसका। अब आप इसका भाग रहे माइक म्यूट करें। हैं, भागो यार मोटिवेटर माइक म्यूट कर दो यार। भागो भागो। अच्छा जी, मौजू है कि मिर्जे कादियानी साहब ने जो मुनाजरे किए भागो भागो। वो जीते या हारे। जी मोची साहब, ये मौजू मैंने हाँ लिख जी, लिया है। बताएं। 2 मिनट आप बात करेंगे, 2 मिनट में, ठीक है? कबूल है आपको? 2 मिनट ये आप बात आपने करेंगे, कहा 2 कि मिनट मिर्जा- मैं करूंगा बात, कबूल है आपको? मैंने साबित किया कि आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ यार पे। बताए तो सही, मैं ये स्टॉपवॉच रखी है, मैं आपका टाइम शुरू करता हूँ। 2 मिनट आप बात करेंगे, 2 मिनट मैं, ठीक है? कबूल है? मैं बोले मैं सबसे पहले कबूल है, कबूल है जी, कबूल है। चले जी, मैं ना आपको ही दावत देता हूँ, ये टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ। 2 मिनट आपके पास है, बोले, मैं नहीं बोलूंगा।
कोई और भी नहीं बोलेगा भाई, इनका माइक भी म्यूट नहीं करना। चलें चलें। हाँ जी बोलें। वो बोले भाई 2 मिनट शुरू हो गए हैं। आपने इल्जाम लगाया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पे कि उन्होंने मुनाज़रे हारे, यही डिबेट थी, यही आपका मौजू था आज का। मैंने साबित कर दिया आपके बुजुर्गों से कि आप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने सारे के सारे मुनाज़रे जीते हैं, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और यहाँ तक कि आपके बुजुर्गों ने कहा कि अगर इस्लाम जिंदा देखना है तो कादियान जाकर देखो। चलें करें बात, काफ़ी है आपके लिए। बस आपने अपना टाइम छोड़ दिया है। नहीं आपको दे दें, मुझे आपके पढ़ाई को थी ना। चलें यार कोई इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। बात कर रहा हूँ ना, चुप कर जाओ। चलो इधर ये लाश काले कालू का वास्ता है तुम्हें। आ गए ना अपनी औकात पे यार तो ये जवाब मैं नहीं अपना आप पे। टाइम शुरू करने लगा हूँ। लाश कालू का आप है ही काले पे, क्या कर बात तो करने दो, मुझे बात तो करने दो। मैं बदतमीजी क्यों की है? बदतमीजी क्यों की है? क्या जवाब नहीं चाहिए? ये लाश काले कालू को खुदा नहीं मानते तुम? नहीं मानते खुदा को? ये लाश और काला और कालू के खुदा हैं। खोला मिर्जे दियां किताबां, खोला है। टाइम मुझे शुरू करने दो। ये मैं अभी टाइम शुरू करने लगा हूं। ये मेरा टाइम शुरू हुआ है। 2 मिनट मैं पूरे बोलूंगा, बीच में बोलना नहीं तुमने। अच्छा तुम कह रहे हो कि मिर्जे कादियानी ने जो मुनाजरे किए वो जीता कि हारा। सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये बताता हूँ कि मिर्जे कादियानी ने टोटल मुनाजरे किए कितने थे। ठीक है, टोटल मुनाजरे, ये सीरतुल मेहदी किताब है और हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 219 है और 220। इसके ऊपर यार इसका माइक म्यूट कर दें। कैसा अजीब बदतमीज किस्म का यार, इतना बदतमीज तो मिर्जा कादियानी भी नहीं था। इतना बदतमीज तो मिर्जा कादियानी भी नहीं था। इतना बड़ा उल्लू का पट्टा तो मिर्जा कादियानी भी नहीं था। और तू तो मिर्जा कादियानी से भी बड़ा मुसीबत बन गया। पागल के बच्चे, बात तो करने दे कम से कम। टाइम तय करके बीच में मुकर रहे हो। वो कहते हैं कि लितरों के भूत जो है ना बातों से नहीं मानते। तुम लोगों को लितर पढ़ने की जरूरत है और कोई नहीं। कादियानियों कोई तुम्हें जरूरत है लितरों की कि तुम्हारी कोई ला पा के ना तुम्हारे हाथ में डाले, फिर तुम्हें लगे पता। अजीब बदतमीज इंसान है वो। मिर्जा कादियानी खंजीर की मैं भी बात नहीं कर रहा। मिर्जा कादियानी खंजीर की बात नहीं कर रहा। ये बात सुन, चुप कर बंदे का बच्चा। अच्छा और चुप कर बंदरा, खामोश रह जा। अच्छा सीरत है, सफा नंबर 220 है, 219 है। वो मिर्जे कादियानी का बेटा जो है ना वो लिखता है कि मेरे बाप ने टोटल 5 मुनाजरे किए, 5। वो रवायत नंबर 240 रवायत नंबर, वो कहता है टोटल 5 मुनाजरे किए हैं। और इन 5 मुनाजरों के अंदर मिर्जे कादियानी को वो लितर पड़े, तरीके लितर पड़े। पहला मुनाजरा वो लिखता है कि पहला मुनाजरा मास्टर मुरली धर आर्या के साथ हुआ है। दूसरा मुनाजरा मोहम्मद सैन बटालवी के साथ हुआ है। तीसरा मुनाजरा मौलवी मोहम्मद बशीर भोपाली के साथ हुआ है। चौथा मुनाजरा मौलवी अब्दुल हकीम कल्ला नूरी के साथ हुआ है। 5वां मुनाजरा डिप्टी अब्दुल्ला आथम मसीही के साथ हुआ है। इन 5 मुनाजरों के अंदर मिर्जे कादियानी को तारीखी शिकस्त हुई। लितर खाए मिर्जे कादियानी ने। वो तू तो कह रहा था लातादाद है, तू तो कह रहा था लातादाद मुनाजरे किए हैं। वो तो कह रहा है, उसका बेटा कह रहा है कि उसने टोटल 5 मुनाजरे किए हैं। और इन 5 मुनाजरों के अंदर मिर्जा जी को माशाल्लाह अच्छे खासे लितर लगे थे। बोल ले, चल बोल ले, चल। और ये कुरान से तुमने साबित करने ही, कुरान से साबित करने के मसीह मौजूद होगा वो मुनाजरे करेगा और मुनाजरों के अंदर लितर खाएगा। ये कुरान से साबित करने तुमने खुद बनाया है कि कुरान से बात होगी। ये कुरान से साबित करना है तुमने कि मसीह मौजूद लितर खाएगा, मुनाजरे करेगा तो लितर खाएगा, मुनाजरे करेगा तो लितर खाएगा। कुरान से साबित करने शुरू हो जाए। रेडियो सुनाना शुरू करते ही ये औकात है, ये औकात है। मुनाजरा ये है कि आप तो भाग रहे हो, तुम झूठ रहे हो।
झूठ हूँ जबड़ियां मारनियां शुरू कर दे जब जब तुम झूठे साबित हो गए हो यार हेलो सुन लो, ਆਪੀ सुन, ਗੱਲ ਕਰ तुम्हारी सारी ਖੋਤੀ ਦੀਆਂ बातें ਬੱਚੇ साबित हो ਆਪੀ रही ਗੱਲ हैं। ਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪੀ हाँ, ਗੱਲ आ जा ਕਰ अपनी बात से। ਉਹ ਖੰਜੀਰਾ ਆਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ उन्होंने लिखी है अहमदियों के कहने के ओए मुताबिक बात कर रहे अल्लामा इकबाल पहले तूने मिर्जे कादियानी के ना ही जना के ऊपर बात की है ना ही अब मिर्जे कादियानी को लिखकर जो पड़े हैं मुनाजरों के ऊपर खुद मौजूद है कि वो भाग रहा है रेडियो तुमने शुरू कर दिया अब बोल ना कुरान दी से साबित कर खोल कुरान अभी तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ कार्य करेगा वो कभी सुन कभी तो इस्तेमाल रहा करेगा कुरान से साबित जिन कर लोगों ने अपनी कर आंखों से कुरान देखा से ना उनकी साबित गवाही मौजूद है सुन हकीकत है बहुत से रिसर्चर्स हैं किताबें लिखी गई सुन 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 लाख दी लानत है भाई लाख दी लानत सुन सुन और यार की ना है उस्मान और जो बल्कि रसगुल्ला 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 जी जी उस्ताद जी ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆ नहीं नहीं रसगुल्ला रसगुल्ला कर यार तू नहीं बड़े ने बहुत बड़ी तादाद उस वक्त अच्छा एनु जरा यार माइक म्यूट रखियो जरा एदा माइक म्यूट करियो जरा अच्छा ਇਹ ਜਰਾ ਸੁਣੋ ਇਹਨੇ ਇਕਬਾਲ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਇਕਬਾਲ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1916 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 9 ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहिब का एक मजमून छपा है जिसमें वो लिखते हैं कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ऐसे नबी के आने का कायल है जिसका इनकार मुसलमान कुफर है वो हारिज और दायरा इस्लाम से हारिज है अगर कादियानी जमात का भी यही कीदा है तो वो भी दायरा इस्लाम से हारिज फाड़ का एक अकीदा लै फाड़ ऐसे गल कर अल फजल अखबार 11 अप्रैल 1916 सफा नंबर 9 इकबाल अलैह रहमा कह रहे ने जेड़ा बंदा किसे नवे नबी दा कायल होया हुंदा ओ दारा इस्लाम समझे ऐथे गल कर हुन दस इकबाल अलैह रहमा दा दस अकीदा हुन तू लै भी मर जाई है फाड़ आदमी साले और नेक लाख दिया बंदिया तेरे ते ये लाश चढ़ गया तेन समझ नहीं आ रही इकबाल दा मैं तेन अकीदा दसिया मरज़ियां दे साले मुताबिक और नेक है सुनिया ही ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ साले ਮੁਸ਼ਰਕ और नेक है वो रंडीबाज मतकीत और ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੇ ਮੰਨਣ मैं ਵਾਲਾ बात नहीं ਹੈ हूँ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਪਾਗਲ वो ਹੋਇਆ ਪਿਆ साले ਮਰਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ की थे ਟੱਟੀਆਂ ਮੂਤਰਾਂ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਚੱਲ ਓਏ ਨਸ ਜਾ ਓਏ ਮਰਜ਼ਈਆ ਨਸ ਜਾ एक ਮਰਜ਼ਈਆ मिनट एनु जरा मैं शिरक दा फतवा ज्यादा मैं ते ही ला के दसा ओहो टुर गया ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਪੜੋ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ- ਮਰਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ लो जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ अच्छा ਉਹਨੂੰ यार। ਸ਼ਿਰਕ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕ भाई कोई कादियानी अगर आए ते आके इंसाना मंगरा गल ते करो कम से कम इंसाना मंगरा करो ਉਹ ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਫਰੀਦ ਬਾਜਵਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ उस्ताद फरीद खान की गली है ਕੀ ਹੋਇਆ हेलो कौन मर गए तो फरीद बाजवा कम से कम है वो कादियानी लेकिन मुनाजरे का उसको ढंग आता है वो खामोशी से उसने हमारी बात सुनी है जब वो बात कर रहा होता था हम खामोश रहते थे ये तरीकाकार भी यही है भाई अपने वक्त के ऊपर तुम जो मर्जी कहो अगले बंदे की भी तो सुनो ना अपनी तुमने खप डाली होती है अगले बंदे की सुनते ही नहीं हो अजीब नमूने हैं कादियानी यार मुनाजरा करो कोई मसला नहीं है लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है खप डाल देते हो तुम लोग अगले बंदे की सुनते ही नहीं हो जी है कोई कादियानी तो आ जाओ बात करो आमने सामने आओ मौजू तुम्हारी मर्जी का यार कोई मसला नहीं है जो शराइत तुम कहोगे वो हमें कबूल है शराइत भी तुम्हारी मर्जी की आओ बात करो आओ लेकिन हमारी सिर्फ एक छोटी सी मिन्नत समाज ये है
کہ کم از کم ٹائم طے کر لو, تو اپنے ٹائم پر تم نے بولنا ہے اور اگلے کی بات توجہ سے سننی, بس. اور کوئی ہماری شرط ہے ہی کوئی نہیں. تو انسان کے بچوں کی طرح بات کرو, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. چل یار رسگلا کر بھائی بات. اچھا ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਫਤਵਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਲੱਗਦਾ. ਤਜ਼ਕਰਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 413 414 ਅੱਗੇ ਵੇ. ਤਾਰੀਖ ਅਦੀ 22 ਨਵੰਬਰ 1903. ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, मैं एक कब्र पर बैठा हूँ, साहिब कब्र मेरे साथ है बैठा है. मेरे दिल में ख्याल आया कि आज बहुत सी दुआएं अमूर ज़रूरी के मुतालिक मांग लूँ और ये शख्स आमीन कहता जावे, यानी कि जड़ा मुर्दा है ना वो आमीन कहता जावे. आखिर मैंने दुआएं मांगनी शुरू की, जिनमें से बाज़ दुआएं याद हैं और बाज़ भूल गई. हर एक दुआ पर वो शख्स बड़ी शरह सदर से आमीन कहता था. एक दुआ ये थी, इलाही मेरे सिलसिले को तरक्की हो और तेरी नुसरत और ताईद इसके शामिल हाल हो. और बाज़ दुआएं अपने दोस्तों के हक़ में थी. इतने में ख्याल आया कि ये दुआ भी मांग लूँ कि मेरी उम्र 95 साल हो जावे. मैंने दुआ की, इसने आमीन ना कही. मैंने वजह पूछी, वो खामोश हो रहा. फिर मैंने इसे सख्त तकरार की और इसरार शुरू किया, यहाँ तक कि इससे हाथापाई करता था. लो जी हूँ मुर्दे नाल हाथापाई हो रही है, उन्हें आमीन नहीं कही, हाथापाई करता था. बहुत अरसे के बाद इसने कहा, अच्छा दुआ करो मैं आमीन कहूँगा. चुनाचा मैंने दुआ की, इलाही मेरी उम्र 95 बरस की हो जावे. इसने आमीन कही. मैंने इसे कहा कि हर एक दुआ पर तू शरह सदर से आमीन कहता था, इस दुआ पर क्या हो गया? इसने एक दफ्तर उज़रों का बयान किया कि ये वजह थी, फ़लाँ वजह थी, जो मेरे जहन से जाता रहा. मगर मफ़हूम बाज़ उज़रों का ये था कि गोया वो कहता था कि जब हम किसी अमर की निस्बत आमीन कहते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है. लो भी मरज़इयो इधर ला होना से बेगैरत मुशरिक ते फतवा तुहाडे जिहड़ा फतवा वे शिरक दा वो फिर इत्थे भी लगेगा, ए मिर्ज़े काने ते भी लगेगा. फतवा है आपू मुशरिक साबित होया. हुण दसो तुसीं इहनूं नबी क्यों मन्निया? एक मुशरिक कज़ाब दजाल नूं तुसीं नबी क्यों मन्निया? तुसीं ਉਹਨੂੰ नबी ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੋ ਗਏ. आओ इस गल का जवाब दियो. अच्छा अभी अब्दुल कादिर भाई भी आ गए हैं. भाई ये अब्दुल कादिर भाई को जो दोस्त जानते हैं ठीक है, नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि ये पैदाइशी कादियानी हैं और एक अरसा तक हमारी इनके साथ डिबेट होती रही, लेकिन अभी ये मुसलमान हो गए हैं, मिर्ज़े कादियानी पे लानत डाल दी है और दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं. तो जी अब्दुल कादिर भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू. क्या हाल है हुजूर, ठीक हो, खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा ये भी मैं दोस्तों को अर्ज़ करूं कि आजज़ की खुश नसीबी है कि आजिज़ के हाथ के ऊपर ही इन्होंने तौबा की है और कलमा भी पढ़ा है और साथ ही साथ ये मेरे मुरीद भी हैं और मेरा अभी तक कोई मुरीद नहीं है सिवाय अब्दुल कादर के. सिर्फ एक मैंने मुरीद बनाया है ज़िंदगी पूरी में और वो है अब्दुल कादर. जी अब्दुल कादर अब माइक आपके हवाले है, तो कोई 10-15 मिनट आप लगाएं, बात कर. कादियानियों को कोई तबलीग भी करें और सब कुछ बताइए. जज़ाकुमुल्लाह खैरा. जी आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर. बात यह है कि कादियानी फ़िरका के बारे में, कादियानी मज़हब ये कुफ़र मज़हब है. इसका बानी मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि अगर मैं अपने किसी बात में तज़ाद है या मेरे किसी पेशन गोई में वो झूठ निकलता है तो समझो मैं झूठा हूँ, मैं कज़ाब हूँ और मुझे गधे पर बैठाओ और मेरा मुंह काला करो और मुझे ज़लील करो. तो मिर्ज़ा कादियानी के एक नहीं, उसके सारे जितने उसके पेशन गोइयाँ हैं वो सब हर एक जो है वो झूठ निकला. ये भी हम नहीं कह सकते यार एक तो अगर सही निकला तो इत्तेफाक से तो सही निकला. बड़ी हैरत की बात है कि उसका एक भी पेशन गोई पूरा नहीं हुआ. यानी कि ऐसा महसूस होता है
کہ یہ آدمی پیشن گوئی کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، وہ اس کے ہر ایک پیشن گوئی کو جھوٹا جو ہے وہ بناتا ہے. تو یہ مطلب اسلام کا ایک معجزہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا عبد القادر، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ابھی آپ نے بات کرنی ہے، مزید کرنی ہے. اچھا میں یہاں پہ سننے دیکھنے والوں کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہے اسلام کی طاقت، یہ ہے اسلام کی روحانیت، کہ ایک پیدائشی قادیانی اور عبد القادر وہ بندہ ہے کہ میں نے اپنے سوشل میڈیا کے کیریئر کا آغاز اس کے مناظرے سے کیا تھا. پال ٹاک پر پہلا مناظرہ سمجھ لیں اس کے ساتھ ہی ہوا ہے. اس دور کا 25 سال پرانا تعلق، آج تک یہ پچھلے سال توبہ کی ہے اس نے، 24 سال یہ میرے ساتھ مناظرے کرتا رہا. یعنی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے والا اور خود الہامیت کا دعویٰ کرنے والا. آج دیکھو مفتی مبشر شاہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوا ہے اور پکا سچا مسلمان ہو کے اسی مرزا قادیانی کو یہ جوتیاں کس طریقے سے لگا رہا ہے، دجال اور کذاب کہہ رہے ہیں. آپ سنتے جائیے ذرا. جی او شیرا، چلو عبد القادر شروع ہو جا. جزاکم اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی وہ اسلام کا دشمن تھا، وہ شیطان تھا، اس لیے کہ جو بھی وہ بات کرتا تھا کہتا تھا یار میرا یہ پیشن گوئی ہے، وہ پیشن گوئی یقیناً وہ جھوٹ نکلتا، وہ پورا نہیں ہوتا. اور ہمارے پاس مطلب کون سی یہ جو قادیانی ہے یہ کس منہ سے ہمیں دعوت دیتے کہ آؤ ہمارا مرزا پر ایمان لاؤ. وہ جھوٹا تھا، مکار آدمی تھا. وہ کسی ایک بات اس کا صحیح نہیں، کسی ایک بات اس میں صداقت نہیں ہے. تو وہ یار اگر کوئی اور کو کھڑا کر دیتے تو چلو کچھ سمجھ میں آتا ہے، چلو اس میں کیا بات ہے. لیکن یہ آدمی، اس کی جو دجل ہے، اس کی جو کذب ہے، وہ تو واضح ہے. میں سمجھتا ہوں وہ تو واضح ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ قادیانی جو ایک مذہب ہے، جو اپنے مرزا کے پیروکار ہے، وہ اسی کے کردار ادا کرے. آج تک ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جا ملے ہیں. ان کا ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، ان کا صہیونیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. یہاں پہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. مرزا قادیانی کا آخری کتاب تھا پیغام صلح. وہ صلح کا پیغام دے رہا تھا ہندوؤں کو. یہ اس کا پس منظر ہے. اور اس نے کہا ہندوؤں ہم گائے قربانی کو چھوڑ دیں گے تمہیں خوش کرنے کے لیے، گائے قربانی کو چھوڑ دیں گے. اور یہ دیکھیے کہ یہ اسلام کا جو ہم قربانی کرتے ہیں، اور سورۃ البقرہ سے اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں گائے کا وہ اس کی ایک عظمت تھی ان کے دلوں میں، وہ بچڑا کے پوجا کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم فرمایا کہ ان کو کہو کہ گائے کو ذبح کرو. مقصد یہ ہے، اس کی حکمت یہ کہ ان کے دلوں میں ابھی تک وہ گائے کا ایک عظمت ہے، اور جس کے دل میں یعنی یہ ایک غیر معمولی قسم کی عظمت ہے. یہ تو ان کی مشرکانہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینٹیمنٹ ہے، اس کو تو نکالنا چاہیے. اور یہ آدمی الٹ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ گائے قربانی چھوڑ دو. یہ ان کا ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ نرم گوشہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. اور قادیانی جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی ہے. وہ جو سیکولر لبرل لابی ہے پاکستان میں، اس کی پشت پناہی قادیانی کر رہے ہیں. اور صہیونی جو اتنے بربریت کر رہے ہیں ہمارے فلسطین مسلمان مظلوم بھائیوں پر، یقین کرے دل خون کے آنسو رو رہی ہے. جو منظر ہمیں دکھایا جا رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں، تو یہ بغیرت قادیانی، یہ تو ان کے ساتھ بھی ان کا گٹھ جوڑ ہے، صہیونیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ. اچھا میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مرزا طاہر قادیانی ان کا جو چوتھا خلیفہ ہے، کاغذی خلیفہ، مطلب یہ کیسا خلیفہ ہے جو کوئین الزابتھ کا فرمانبردار ہے، اور وہ انگریز کا جو کنگ ہے، کوئین ہے، یہ ان کے تابع ہے.
उनकी मूर्ति है और ये अपने आप को खलीफा कहती है। कैसा खलीफा है जो अंग्रेज़ के बादशाह के तहत है? ये क्या खिलाफत है? बहरहाल वो उसने कहा जब उसके दौर में वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक़्त वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया था, वज़ीर आज़म बन गया था, तो और ये बीजेपी का पहला गवर्नमेंट था इंडिया के हिस्ट्री में, 1990s की बात है। तो उसने कहा देखिए इंडिया में ये जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का एक चीज़ जो उभर के आ रहा है, ये पाकिस्तान में जो मुल्लायत है और ये जो पाकिस्तान में इस्लाम पसंदी है और ये पाकिस्तान में जो दाईं बाजू का एक सोच है जो इस्लाम को पसंद करता है, जो शरीयत का निफाज का मुतालबा करता है, ये उसके रद्द अमल में है। यानी उसको एक्सक्यूज़ कर रहा था, उसको माजूर कर रहा था हिंदुत्व को कि यार ये तो मुल्लाओं के रिएक्शन में इंडिया में ये आ रहा है, तो देखे कैसे ये मुसलमान के दुश्मन है और मुसलमान के साथ ख़यानत करते हैं। ये इसका सियासी किरदार है, ये तो कादियानियों का ये एक साजिश है इस्लाम के ख़िलाफ़। और ये हक़ाइक़ जब आप देखेंगे, मैं कादियानियों को भी कहता हूँ कि इन चीज़ों को आप स्टडी करो और समझो, तो आप ख़ुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि ये कादियानी फ़ितना ये एक ऐसा फ़ितना है मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए और मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अंग्रेज़ ने एक झूठा को इसलिए खड़ा किया कि मुसलमान में जिहाद का जज्बा भी ख़त्म हो और मुसलमानों में जो नामूस रिसालत का जज्बा है, हमारे अंदर ये जो एक हसास जज्बा है, वो भी डल जाए, वो भी ख़त्म हो जाए। ये इनका दो मकसद थे अंग्रेज़ के, क्योंकि वो तो मुसलमान से ख़तरा महसूस करते थे कि ये लोग तो अपने नबी के बड़े आशिक हैं, दीवाने हैं अपने नबी के लिए, और इनमें जिहाद का भी जज्बा है। तो इसलिए इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें एक ऐसा आदमी को जो है उसके तायद करे, उसको सपोर्ट करे कि वो मुसलमानों को ये इन चीज़ों से दूर कर दे, जुदाई डाल दे। तो उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी का जो है उसका तायद किया और उसने ये अलाकारी किया अंग्रेज़ के लिए और हिंदुओं के लिए और सिहोनियों के लिए भी। तो ये आदमी मिर्ज़ा कादियानी मुसलमान का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था। उसने ये नबूवत का दावा इसलिए किया कि भाई मुसलमान के सोच को मैं तब्दील करूं और मैं इस अथॉरिटी के बिना पर कि भाई मैं तो नबी हूं तो तुम लोग मेरे बात को मानो। तो ये चीज़ें आप समझे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, ये कादियानी के बारे में ऐसे ही बोले जा रहा है, ये ऐसे था अमेरिका फलान, ये क्या है ये? जी आप मुझसे बात करें, क्या आप कौन है, क्या सवाल है आपका? भाई हम अहले हदीस हैं। अच्छा ठीक है, तो माशाल्लाह ये हम तो सही हैं, मगर आप लोग क्यों ये शिर्क क्यों करते हैं? यानी गुनाह नहीं है ये? कौन सा शिर्क? शिर्क से मुराद आप लोग ये किसी का भी नाम लेके कहते हैं कि ये यानी फलां मदद और कब्रों पे जाते हैं, ये तो बड़ी गुनाह वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल ठीक। जो करता है वो गुनाह करता है, गुनाह है ना भाई। हाँ बिल्कुल ठीक। और आप तो हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह को भी नहीं मानते, उसको ये क्या है, लोग हैं आप लोग समझ नहीं आते। बिल्कुल ठीक। और कुछ कि तकलीफ होती है हमें और हमारे मुहद्दिसीन को। हाँ होनी चाहिए तकलीफ आपको, क्यों ये तकलीफ बाइसे तकलीफ है, तकलीफ तो होनी चाहिए। जी 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 जी। हाँ तो कोई इलाज वगैरह करवाया फिर आपने अपनी तकलीफ का? नहीं, यानी तकलीफ होती है, क्या करें, यानी हम कहाँ जाएं? हाँ नहीं, इलाज करवाएं, जाना कहीं नहीं है, इलाज करवाएं। सही बात, गलत है ना, नहीं करना चाहिए ना, शिर्क वगैरह गुनाह होता है। गुनाह होता है। जज़ाक। और कोई? जज़ाकल्लाह उलमा साहब, जज़ाकल्लाह। हाँ ठीक हो गया। नहीं, इलाज पर वक्त करवा लीजिएगा, मर्द बिगड़ जाए ना तो वो फिर काम खराब हो जाता है। सही बात। हाँ भाई हम तो अहले हदीस हैं, हम क्या करें? बिल्कुल, वो मुझे नजर आ रहा है, आप जिस किस्म कह ले दिए वो नजर आ गई।
थैंक यू। जी, और कोई बात? नहीं, बस यही मुनाजरा करने आया था, और देखा यहाँ तो पलड़ा हमारा भारी है। हाँ हाँ, अच्छा, ये मुनाजरा करने आए थे आप? जी जी। अच्छा, ठीक। तो ये मिर्जा कादियानी के बारे में ये लिखा हुआ है, सीरतुल महदी है, सफ़ा नंबर 66 है, हिस्सा चहारम, और कादियानियों की आपकी हदीस नंबर 1085 है। तो देखिए, कायदे मिर्जा पे लानत, पहली चीज ये लानती था, ठीक है। ये जड़ हमारी नहीं है, अहले हदीस की नहीं है, ये अहले देवबंद की है, ये नहीं, देवबंद से निकला हुआ है, नहीं, ये नहीं, उनका है भाई, नहीं ये नहीं, हमारे पास इसको नहीं ना नहीं नहीं, और नहीं, देवबंदी और सुन तो लेना साहब, इधर लवो तकलीफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੀ, थोड़ा सुन भी तो लेना। मैं तकलीफ की बात नहीं कर रहा, किसी भी ऐसे बात करना, ये अमेरिका का बंदा था, ये यार सुन तो ले, नहीं देता नहीं इजाजत, हवाला तो सुन ले यार, क्या हो गया है। सीरतुल महदी है, याद करें, मेरे पीछे पीछे दोहराएं, सीरतुल महदी, सीरतुल महदी, सफ़ा नंबर 66, सफ़ा नंबर 66, हिस्सा चहारम, ईसा चहारन, हदीस नंबर 1085, हदीस नंबर 1085। हाँ सही। हजरत मसीह मऊद मुतरल शलवार के पास खाकी वर्दी और बूट पहने हुए एक अफसर आया और सर पर कुल्ला और पगड़ी पहनी थी। वो आकर हजरत साहब के सामने झुक गया, सर जमीन से लगा दिया। हजूर ने उसकी कमर पर 3 थपकियां मारी और वो उठकर हंसता हुआ चला गया। मौलवी अब्दुल करीम साहब ने दरियाफ्त भी किया, मगर हजूर मुस्कुराते रहे और कुछ ना बताया। अब ये मिर्जा कादियानी जो सजदे करवाता था, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो लानती था, ये हम बाथरूम के अंदर मर गया। मुशरक था कि नहीं, ये बताइए। मुशरक कम है, ये मुशरक से बढ़कर, यानी काफिर, और ऊपर से उसको क्या बोलते हैं, काफिर के बाद क्या बोलते हैं उसको, ये तो आप ये वलद जना था। अच्छा, वलद जना था। अच्छा, बड़ी खबर दी आप। अच्छा, इसकी कोई गवाही शुवाही है कोई आपके पास? क्योंकि हमने अगर मर्दइयों को, कादियानियों को कहा ना, उन्होंने मानना को नहीं, तो आप कादियानियों को मनवाने के लिए वलद जना की कोई आप हमें कोई बताइए, कोई सबूत, ताकि हम भी आइंदा से वो किताबें खोल के उनको बताएं कि ये देखो लिखा हुआ है। नहीं, देखें, जो मुहद्दिसीन ने लिखा है ना, मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि जो इस्लाम से खारिज है उसके साथ मुनाजरा नहीं करना। अगर मुनाजरा हम कर रहे हैं तो इसके माना कि वो इस्लाम के अंदर है। कौन से मुहद्दिसीन ने कहा है? बहुत सारे मुहद्दिसीन है हमारे यहाँ, तो हर मुहद्दिसीन ने लिखा है, तो हम तो वही चलेंगे ना। कोई एक अद्दे का नाम ही दे दें, हमें भी पता चल जाए। अच्छा, आप हवाइयाँ बड़ी छोड़ रही हैं। जब मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपको हवाइयाँ छोड़ने का ना कोई बहुत ज्यादा शौक है। इधर उधर की छोड़ रहे हैं आप, पकड़ाई नहीं दे रहे। नहीं, हम आप हवाइयाँ छोड़ रहे हैं, चक्कर क्या है? जब से आप आए हैं हवाइयाँ छोड़े जा रहे हैं, किसी चीज का कोई सबूत नहीं, प्रूफ नहीं, कुछ भी नहीं। वो 2-4 मुहद्दिसीन का हमें भी बताएं जिन्होंने मुनाजरा करने से रोका है। जी देखिए, उलमा से दीन जिन्होंने लिया है वो आगे जाते हैं। यार, फिर आप पकड़ाई नहीं दे रहे, फिर भाग रहे। मैं कह रहा हूँ 2-4 मुहद्दिसीन के नाम हमें बता दें भाई, हमें भी पता चल जाए किसने मुनाजरा करने से, कादियानियों के साथ मुनाजरा करने से रोका है। जी जी। हाँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है ये तो। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ छलंग ला के और दरख्त पे चढ़ जाओ, हैं? नहीं, जो मुहद्दिसीन ने कहा है वही करेंगे ना हम। चक्कर क्या है? ये पता है आपको, बंदरों का तरीका है ये बंदरों का तरीका है दरख्त बदलना। बंदा एक जगह पे टिक के रुक के बात कर लो, दरख्त की बदलना सी भाई, यही बराड़ ही बदल गए थे।
नहीं अलामा साहब बैठे हैं जी, जो बात कर रहे हैं अलामा मियाँ साहब। नहीं उलमा हुआ सर, मैं उलमा हुआ। अच्छा, मैं समझा शायद वो चले गए। हाँ, नहीं ये कोई बताएं, कोई हमें भी बताएं, कोई 2-4 मुहद्दिसीन का कोई नाम बताएं, कोई पता बताएं, कोई किताब बताएं, ताकि हमें भी पता चल जी। देखिए, जो मुहद्दिसीन के यहाँ रवायत मिलती है, यानी हमें मुहद्दिसीन है कि मुहद्दिसीन है? मीम मफ्तू है कि मजमूम है? मुहद्दिसीन, सुभान अल्लाह। नहीं, तो हमें यही मुहद्दिसीन सोचना है कि चाहिए। मुहद्दिसीन है? मुहद्दिसीन, अभी आप मुहद्दिसीन कह रहे थे, मीम मफ्तू है कि मजमूम है? मजमून। मजमूम, ठीक, चले, शुक्र है। हाँ, और सीगा कौन सा है? तो ये सीगा कौन सा देखिए है? ना, मुहद्दिसीन, मुहद्दिस जी, सीगा कौन सा है? मुहद्दिसीन दी असूल दिन पे चल रहे हैं ना अभी हम लोग। अब वो तो ठीक है, आप आलिम आपने साथ लिखा हुआ है कि, तो मैं देख लूं आप कितने आलिम हैं। ए मुहद्दिस सीगा कौन सा है? जी जी हाँ, जी, माशाल्लाह, अच्छी बात है। कौन सा सीगा है? माशाल्लाह तो है, सीगा कौन सा है? अब अटैट हो गई जी। हेलो, माशाल्लाह, अच्छी बात है, ये भी सोचना चाहिए हमें। सीगा कौन सा है? सोचना तो चाहिए। सोचने से पहले ही आपने आलिम लिख लिया अपने नाम के साथ। उस्ताद मोहतरम, आलिमा लिखा हुआ, ये औरत नहीं होती आलिमा? आलिमा नहीं लिखा, उलमा लिखा है, उलमा। अच्छा, चलो उलमा लिखा है। चलो पहले मुहद्दिस सीगा तो बताएं कौन सा है? मुहद्दिसीन का तो बहुत सारे हमारे यहाँ मौजूद हैं, आपके यहाँ वो शायद सीगा पूछा है, सीगा कौन सा? उन्होंने सीगे तो नहीं जे पता होना है बंदे नाल की मैं गल करा। उन्हें पता ही नहीं कि सीगा कहंदे केड़ी बला नूं। अब्दुल कादिर माइक दा ओपन करना। जी हुजूर। अब्दुल कादिर, मुहद्दिस कौन सा सीगा है? हुजूर मुझे इल्म नहीं है। बाबे तफ़ईल है, हद्दसा युहद्दिसु तहदीस, ठीक है? तफ़ईल, बाबे तफ़ईल के वजन के ऊपर, तहदीसुन, तफ़ईलुन इसका मस्दर है, और हद्दसा युहद्दिसु तहदीसन फहुवा मुहद्दिसुन इसमें फाइल है। मुहद्दिसुन सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, सीगा वाहिद मुज़क्कर है, सॉरी गायब नहीं, इसमें फाइल सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। और अगली बात के मुहद्दिसीन ये जमा का सीगा है हालते नस्बी और जरी में। मुहद्दिसून हालते रफी के अंदर आएगा, और मुहद्दिसीन मुहद्दिसीन ने कहीं लिखा नहीं है ना इस बारे में। यार एक मिनट ठहर जा भाई, ठहर जा। और मुहद्दिसीन हालते नस्बी और जरी के अंदर आएगा, जमा का सीगा है मुज़क्कर के लिए, ठीक है? अच्छा चलो, ये तो एक सीगे पर बात हो गई। तो चलो भाई, मुहद्दिसीन में से मुहद्दिसीन तो जमा का सीगा है, और जमा का इतलाक 3 या 3 से ज्यादा के ऊपर होता है। सिर्फ एक मुहद्दिस का बता दो, सिर्फ वाहिद, तस्निया भी नहीं, जमा भी नहीं, सिर्फ वाहिद। कोई एक मुहद्दिस आप बताएं कि जिसने कादियानियों के साथ मुनाजरा करने से मना किया हो। हाँ, हेलो जी जी, मना है ना। देखिए, मना जो किया है उलमा ने, इस वजह से किया है मुहद्दिसीन ने किया कि उलमा ने किया है? मुहद्दिसीन और उलमा ने, दोनों ने एक साथ मिलकर। भाई उलमा अलग होते हैं, मैं अब आलिम हूँ, मुहद्दिस नहीं हूँ। मुहद्दिस अलग होता है, आलिम अलग होता है। वो मुहद्दिसीन पहले आप से रवायत मुहद्दिसीन लेगा कह रहे थे, अब आपने उलमा कह दिया। जी जी, नहीं, हम उस बात पे नहीं जा रहे ना, हम वहाँ नहीं जा रहे। मैं उस बात पे जा रहा हूँ ना, मैं तो उस बात पे जा रहा हूँ। अब उस बात का क्या करना है? जी, क्या? तो मुहद्दिसीन ने जो रवायतें दी हैं कि अगला, जैसे यार अहले तशय्युह हो गए और उस्मान, इनके साथ उस्मान रिजवी, मोहतरम जी, उस्मान जी उस्ताद मोहतरम। मैं क्या तेरा केस ही भाई, मेरा केस नहीं हो भाई, आप ये संभालो।
آپ ہی سمجھو. میں چھڑ دیتا ہے جی مریض ڈیل کرنے چھڈے ہوئے جب تسی اجازت دو گے ادو کرا گے ہلے نہیں نہیں میں اسی اور رستہ کھولنا بھی نہیں چاہتے. اصل چ وہ نہیں جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں نا اہل حدیث بھابی. اے بھابی نہیں ہے, بندہ تھرڈ پارٹی ہے. مینوں غالباً ملحد ایسی لگ رہے ہیں, بات نہیں. مینوں لگتا ہے ملحد ہے. نہیں ہاں نہیں تھرڈ پارٹی ہے. تم کچھ تم اہل حدیث نہیں ہو. بھائی ہم سب کو مانتے ہیں, ہم وہ سب نہیں کو ہو مانتے یہ جھوٹ نہ ہیں. بولو, اہل حدیثوں کو بدنام نہ کرو. اہل حدیث نہیں. 2 منٹوں کے اندر ایسی بات ہم نے نہیں آپ کا آپریشن کر لیا. آپ کیا ہیں اور کس مشن پہ آئے ہیں وہ بھی سمجھ لیے. آپ کا مشن بھی سمجھ لیا کہ آپ کس مشن پہ آئے ہیں. ہمارا یہی دن رات ہے چودھری صاحب کام ہے. ایسے آپ جیسے بندوں کو پکڑتی ہیں ہم, تو پھر تو لعنت ہے ہمارے اتنے کیریئر کے اوپر کہ ہم بندے کی پہچان ہی نہ کر پائیں. 2 نیچے منٹوں لکھ کے رہا اندر ہے 2 سوالوں کے بعد بندے کا پتہ چل جاتا ہے بندہ کیا ہے. آپ ہمیں کاکا نیچے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کاکے ہیں کوئی. آپ کا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں. آپ ملحد ہیں یا آپ ہندو ہیں. نہیں کیونکہ نہیں, ہندو نہیں ہے ہم اللہ. چلو ہندو نہیں تو نہیں پھر تو نہیں ملحد ہی ہیں. نہیں نہیں, مسلمانوں میں مدد سے آپ کا کسی بھی ٹیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. ٹوٹل آپ کوئی فراڈی. سوال پوچھ لیں مسلمانوں میں سے. تو اچھا کیا تو ہے سوال سوال, آپ کو تو چلو پتہ ہی بتاؤ نہیں. چلو بتاؤ محمد حسین بٹالوی کون ہے؟ یار یہ کون ہے؟ یہ محتسین میں تو آیا ہی نہیں ہے اس کا نام, بٹاولی. چلیں کچھ بھی نہیں ہے یار, بیچارہ فارغ آدمی ہے. میں نے بتایا نا ملحد ہے. یہ ڈرامے نہیں نہیں, بازیاں فارغ کی بات نہیں, ہم اس لوگ قسم کے ٹک ڈرامے ٹاک بازیاں پہ بھائی چلتے تم ہیں. لوگ دیکھ بات کرتے ہو. سنو ہم علامہ صاحب, تم جیسے لوگوں کے ڈاکٹر ہیں. 2 منٹوں کے اندر ہم یہ پہچان غلط کر بات لیتے کر رہے ہیں آپ. کسی پہ ایسے الزام نہ لگائیں. ہیں. ہم ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں. ہم نے اتنا وہ یعنی علم نہیں لیا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں نا, ہاں اتنا نہیں لیا ہم نے. جی اچھا, کتنا نماز آتی ہے؟ جی, نماز آتی ہے. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. کون کون سے؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, مغرب, عشاء. عشاء. اے 5 نے. اے ملحد جے یار, پکا سچا سچا. لعنت ہو تیرے تے. اللہ دی قسم ہے ملحد جے. جو میں قسم چک کے کہنا پہ بندہ ملحد نماز جے. دے فرائض کچھ نہیں, وہ 5 نمازیں دسن لگ گیا. نمازاں دسنا نماز دے فرائض شکر کرو بندہ مولوی صاحب نے ملحد ہے, ابھی تو ڈولی نہیں کیا. ہاں ملحد ہے. یہ بندیاں نو انج 2 منٹاں چ بندہ پھڑ لیندا ہے, کوئی ٹینشن ہی کونی. اگوں ادھر میں جدید نو بننے والا وا. نہیں وہ اصل چ شرارت کرن آیا سی نا کہ بھائی آپس چ بھابیاں نو نہیں گالاں ایسی کٹن گے, کوئی بات کی ہے شرارت بھابیاں نو والی تو آپ گالاں مفتی کٹن صاحب. گے, کوئی ایس سازش تے آیا سی نا. نہیں 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 وہ نہیں, انہاں دی ایسی بات سازش تے اسی جاننے ہیں. اے سمجھتے نا اسی کاکے ہیں. ہاں دندیاں کٹدا ہے دیکھی. اتر اسی وڈیاں وڈیاں دیاں کڈا چھڑیاں نے تے تو کی شے. اچھا اچھا بہو یار منڈیو. آپ کو اسلام کا سوال تو پوچھیں. چل یار چلے نس جا انہوں نس اسلام کا سوال جائے, پوچھو. 15 جا لتر کھائے گا چکی وچ باندھ دینا ہے پیا. اچھا عبد القادر آیا کرو بھائی, ان لڑکوں کو فالو کر لو. یہ ساری ٹیم ہے, یہ آپ کے بھائی ہیں, اور سارے دوست بھائی یہ بھی آپ کی ٹیم کا آئندہ سے حصہ ہیں. عبد القادر کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے. یہ ختم نبوت فورم کی ٹیم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے بھائی سارے صاحبان. تو مجھے اجازت دیں بھائی. عبد القادر اجازت دیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ਵੈਸੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ. ਆਪਣੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ. ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ. اچھا میری گل سنو جنہ تکر استاد محترم اجازت نہ دے
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔